انور بہت جذباتی ہو گیا تھا۔ کافی دیر اس نے اسماعیل کو اپنے ساتھ لپٹائے رکھا۔ غازی شاہ، اس گھر کے دروازے ہمیشہ تیرے لیے کھلے رہیں گے۔ گو میں جانتا ہوں کہ ہم تیرے دکھوں میں اضافے کا باعث ہی بنے ہیں، لیکن بخدا ایسا نادانستگی میں ہوا ہے۔ وہ بولا، ادا، خوشیوں کا ایک لمحہ بھی ہزاروں دکھوں کا مداوا بن سکتا ہے، بشرطے کہ وہ خوشی سچی ہو۔ زلیخا میری زندگی میں بہار کا جھونکا بن کر آئی اور ہمیشہ میری یادوں میں زندہ رہے گی۔ اس کے قاتل کو میں نے جہنم واصل کر دیا ہے۔ تفصیلات آپ کو خیر دین سے پتہ چل جائیں گی۔ اب میرے پاس ٹائم بالکل ہی نہیں ہے۔ زندگی رہی تو کسی دن ضرور آپ سے ملنے آؤں گا، اور ہاں، خیر دین آپ کی زمین واپس کر دے گا۔ وہ بغیر کسی بحث کے لے لینا، اور ہو سکے تو اسے معاف کر دینا۔ اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے۔ انور نے پوچھا، شہر تک کیسے جاؤ گے؟ اسماعیل نے کہا، وڈیرے کی اونٹنی کے ساتھ خیر دین گوٹ سے باہر میرا منتظر ہوگا۔ انور نے پوچھا، اچھا، کچھ رقم ساتھ لیتے جاؤ، راستے میں کام آئے گی؟ وہ بولا، ادا، اگر رقم کی ضرورت ہوتی تو آپ سے مانگنے میں مجھے کوئی شرم نہ ہوتی۔ وہ التجائی لہجے میں بولا، تھوڑی سی تو رکھ لو۔ اسماعیل نے کہا، نہیں ادا۔ اس نے زبردستی مسافہ کیا اور بیٹھک کے اس کمرے پہ الوداعی نگاہ ڈال کر باہر نکل آیا جس میں اس نے زلیخا کے ساتھ زندگی کے چند قیمتی دن گزارے تھے۔ خیرو کو اس نے ادا انور کے کھیت میں اپنا منتظر پایا۔ ایک قوی الجثہ اونٹنی اس کے ہمراہ تھی۔ خیر دین، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں زیادہ بات کر سکوں، مختصر یہ کہ میں تمہیں معاف کر رہا ہوں، اور ادا انور کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ وہ بھی تجھے معاف کر دے۔ وڈیرے کی موت کا سارا الزام آپ لوگوں نے میرے سر دھرنا ہے، کیونکہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ البتہ اتنا کام کر دینا کہ ادا انور سے ہتھیائی گئی زمین اس کے حوالے کر دینا۔ وہ بولا، میں ایسا ہی کروں گا سائیں۔ اگر آپ یہ نہ کہتے تب بھی میں نے زمین انور سائیں کے حوالے کر دینی تھی۔ مجھے اپنی کوتاہیوں اور غلطیوں کا اعتراف ہے۔ گو میں ان تمام کا ازالہ تو نہیں کر سکتا، البتہ کوشش ضرور کروں گا کہ اپنے کردار پہ لگے چند دھبے ہی مٹا سکوں۔ اسماعیل نے کہا، مجھے تم سے یہی امید ہے خیرو، اور اس نے خیرو سے الوداعی مسافہ کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اونٹنی پہ بیٹھا عمر کوٹ کی طرف رواں دواں تھا۔ گو عمر کوٹ سے پہلے چند ایسے شہر موجود تھے جہاں سے اسے گاڑی مل سکتی تھی، مگر اتنی بڑی واردات کے بعد اسے وہاں جانا مناسب نہ لگا۔ وڈیرے کی موت کا الزام اپنے سر لینے کے بعد گوٹ صدرو سے نزدیکی شہروں میں جانا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا، اور وہ کسی قسم کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے سیدھا عمر کوٹ کا رخ کیا۔ گوٹ میں گزارے ہوئے دنوں کے دوران شہر کے راستوں کے بارے میں اس نے ادا انور سے اچھا خاصا سمجھ لیا تھا۔ عمر کوٹ صدرو سے 40-45 کلومیٹر دور تھا، اور اسے امید تھی کہ وہ دوپہر تک وہاں پہنچ جائے گا۔ سورج نکلنے تک وہ گوٹ صدرو سے خاصے فاصلے پر آ گیا تھا۔ خیرو کے کہنے کے مطابق وہ اونٹنی واقعی لاجواب تھی۔ اسماعیل کو اونٹ کی سواری کا اتنا ہی تجربہ تھا کہ گوٹ شالم سے گوٹ صدرو تک وہ اونٹ پہ بیٹھ کے آیا تھا، اور پچھلے اونٹ کی نسبت اس اونٹنی کی رفتار کافی تیز تھی۔ راستے میں ایک جگہ چند کانٹے دار جھاڑیاں دیکھ کر اس نے تھوڑی دیر وہاں آرام کیا، تھوڑا سا کھانا کھایا جو کہ رات کی باسی روٹی اور سبزی کے سالن پہ مشتمل تھا۔ وقت نہ ہونے کے باعث خیرو تازہ کھانے کا انتظام نہیں کر سکا تھا۔ باسی روٹی کے علاوہ اس نے بھنے ہوئے چنے اور گڑ بھی کھانے والی پوٹلی میں باندھ دیا تھا۔ جتنی دیر وہ وہاں بیٹھا رہا، اونٹنی کانٹے دار جھاڑیوں پہ منہ مارتی رہی۔ زیادہ دیر آرام کرنا اس سے مناسب نہ لگا، اور وہ ایک مرتبہ پھر اپنی سواری پہ بیٹھ کے روانہ ہو گیا۔ البتہ گرمی کی شدت کو دیکھتے ہوئے اس نے اونٹنی کو بھگانے سے گریز کیا۔ چونکہ اس نے مغرب کی سمت سفر کرنا تھا، اس لیے تمام راستے وہ سورج کی مدد سے اپنی سمت کا تعین کرتا رہا۔ ٹریننگ کے دوران انہیں سورج اور تاروں کے ذریعے سمتوں کی پہچان کے طریقے بتلائے گئے تھے۔ آج وہ طریقے اسے عملی زندگی میں کام آ رہے تھے۔ مزید گھنٹہ ڈیڑھ چلنے کے بعد اس کا گزر چند چھوٹی چھوٹی بستیوں سے ہوا۔ یہ لامحالہ عمر کوٹ کی مضافاتی بستیاں تھیں۔ ان کے اختتام پہ اسے بہت بڑے شہر کے آثار نظر آ رہے تھے۔ کراچی کے علاقے قائدآباد فلائی اوور کے قریب دھماکہ۔ روشنی کے شہر کراچی کو تاریک کرنے کی سازشیں بے نقاب۔ بھارتی ایجنسی را کی چال بازیاں، مکاریاں، ایک ایسے نوجوان کی داستان جسے حالات نے دہشت گرد بننے پر مجبور کیا۔ بدنام زمانہ ایجنسی بلیک واٹر کے غلیظ دھندے۔ پاکستانی ISI کے کارنامے۔ ملک کی خاطر قربانیاں۔ سنائپر اور بھگوڑا کے بعد پیش خدمت ہے ریاض عاقب کوہلر کا ایک اور شاہکار ناول دلدل۔ عاطف اس وقت الیاس کے ہمراہ ایک درمیانی درجے کی کوٹھی کے سامنے موجود تھا، جس میں فیصل کے بقول شمیم سے ملنے والا غیر ملکی مقیم تھا۔
फैसल को उसने इमरान के पास भेज दिया था ताकि वो शमीम को गेस्ट हाउस ले जा सकें। इलियास ज्यादा देर इंतजार न कर सका। सर, इंतजार किस बात का है? आतिफ हल्की मुस्कुराहट से बोला, किसी बात का भी नहीं। वो बोला, तो फिर अंदर चले ना। उसने कहा, अंदर चलकर क्या करेंगे? इलियास ने कहा, आपने खुद ही तो कहा है कि उसे गिरफ्तार करना है। आतिफ बोला, सोच रहा हूँ कि अगर चंद दिन निगरानी में रखा जाए तो कैसा है? वो बोला, जैसे आप मुनासिब ख्याल करें। इलियास कोई मशवरा न दे सका। आतिफ गोया खुद से मुखातिब हुआ, एक और हल भी है, लेकिन उसकी बड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि इलियास को पूछना पड़ा, वो क्या सर? आतिफ बोला, अगर हम इसे यूं गिरफ्तार करें कि किसी को कानो कान खबर ना हो और फिर इसकी कोठी की निगरानी करते रहें तो लाजिमन कोई ना कोई इसका पता करने आएगा। इलियास ने कहा, सर पता तो फोन पे भी हो सकता है, और जब हम इसे गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं तो फिर इसे सब कुछ बकना पड़ेगा। आतिफ ने कहा, दुरुस्त है, मगर मेरी बात का मतलब ये है कि अगर ये भी कोई दरमियानी मोहरा हुआ तो फिर हम लटक जाएंगे। इलियास बोला, उम्मीद तो है कि ऐसा नहीं होगा। आतिफ ने कहा, मैं भी इम्कानी बात कर रहा हूँ। बहरहाल चलो इसका बंदोबस्त कर लें, बाकी बाद में देखा जाएगा। इलियास को वही निगरानी का कहकर आतिफ कोठी के गेट की तरफ बढ़ गया। इत्तलाई घंटी बजाते ही ज़ेली खिड़की खोलकर चौकीदार बाहर आ गया। जी सर। आतिफ का मौजज़ाना हुलिया देखते ही उसका लहजा मौद्दबाना हो गया। आतिफ ने कहा, साहब घर पर हैं? चौकीदार ने मुतज़ब्ज़ब लहजे में कहा, सर ये टाइम तो उनके सोने का है और उनका हुक्म है कि उन्हें किसी सूरत जगाया न जाए। आतिफ ने पूछा, किस टाइम उठते हैं? चौकीदार कलाई पर बंधी घड़ी देखता हुआ बोला, 5 बजे सर। उसकी तकलीद में आतिफ ने भी घड़ी पर खुद निगाह दौड़ाई। 4 बजने वाले थे। उसने कहा, कोई बात नहीं, मैं 1 घंटा इंतजार कर लूंगा। चौकीदार बोला, सर उनकी इजाजत के बगैर? आतिफ ने कहा, यार मैं तुम्हारे साथ ही बैठ जाऊंगा। असल में तुम्हारे साहब के साथ मेरी मुलाकात तय थी, लेकिन गलती से टाइम का तयन मैं न कर सका। ना ही उसने कोई ऐसी बात की कि वो फला टाइम मुयस्सर नहीं होंगे। चौकीदार बोला, आपने किस सिलसिले में मिलना है? वो बोला, कोठी की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में उनसे बात हुई थी। चौकीदार बोला, मगर ये कोठी तो किराए की है। चौकीदार के लहजे में वाज़े तौर पर शक की परछाइयां हिलकोरे ले रही थी। आतिफ ने कहा, तो मैंने कब कहा है कि ये कोठी खरीदनी है? मैंने अपनी कोठी बेचनी है भाई। आतिफ की अदाकारी ऐसी नहीं थी कि चौकीदार का शक बरकरार रहता। वो बोला, आए सर, अगर आप इंतजार करने पर ही बजिद हैं तो कुछ देर गपशप कर लेते हैं। आतिफ उसके पीछे अंदर दाखिल हुआ। गेट के साथ ही चौकीदार के लिए एक छोटा सा कमरा बना हुआ था। कोठी आला तर्ज तामीर का नमूना थी। बरामदे के सुतूनों के साथ लटकती बेलों ने उसकी खूबसूरती में खातिर खा इजाफा किया था। छोटा सा चमन जिसके वस्त में मखमली घास और साइडों पर क्यारियां बनी हुई थी, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के खुशनुमा फूल खिले हुए थे। एक सरसरी नजर से वो इतना ही देख पाया था। उसके बाद उसे चौकीदार के पीछे उसके कमरे में दाखिल होना पड़ा। कमरे के कोने में सिंगल बेड और उसके साथ लकड़ी की 3 कुर्सियां बगैर किसी तरतीब के पड़ी हुई थी। चौकीदार ने एक कुर्सी की तरफ इशारा किया, बैठे जनाब। वो इत्मीनान से बैठते हुए मुस्तफसिर हुआ, यार बेगम साहिबा भी इस वक्त आराम फरमाती हैं। चौकीदार बोला, साहब गैर शादीशुदा हैं? वो बोला, वैसे ये बेहतर है। और आतिफ ने खड़े होकर कोट की अंदरूनी जेब में रखा पिस्टल निकालते हुए कहा, अगर महसूस न करो तो जरा घूम जाओ। पिस्टल देखते हुए वो जरा भी न घबराया। मिस्टर, मेरा ख्याल है तुम किसी गलत जगह आन फंसे हो। बेहतर यही है कि चुपचाप चले जाओ और आइंदा इधर का रुख मत करना। उसका इत्मीनान देखते हुए आतिफ को ये अंदाजा लगाने में देर न लगी कि वो सिर्फ दिखावे का चौकीदार है। आतिफ बोला, मेरा ख्याल है तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई। वो बोला, और तुम्हें भी शायद किसी और जबान की समझ आती है। ये कहते हुए वो अचानक बिजली के कौंधे की तरह उछला। उसकी घूमती किक का निशाना आतिफ का पिस्टल वाला हाथ था। एक हल्का सा कदम अपनी जगह से पीछे लेकर आतिफ ने उसका वार खता किया। वो वार खता होने से लड़खड़ा सा गया था। इससे पहले कि वो संभल कर दूसरा हमला करता, आतिफ अपनी जगह पे खड़े खड़े घूमा। उसकी एड़ी तोप से निकले हुए गोले की तरह चौकीदार की कनपटी की तरफ बढ़ी। उसे उस वक्त पता चला जब बूट की मजबूत एड़ी और उसकी कनपटी का मिलाप हो चुका था। जमीन चाटने के अलावा उसके पास कोई रास्ता न बचा। आतिफ ने उसी पे इक्तिफा न किया। चौकीदार के नीचे गिरते ही उसके दूसरे पांव की ठोकर ठीक मजरूब जगह से टकराई और उसने हाथ पांव ढीले छोड़ दिए। पिस्टल अब तक उसके हाथ में था। उसे जेब में रख कर वो नीचे झुका और चौकीदार की तलाशी लेने लगा। उसकी अंदरूनी जेब में एक लोडेड पिस्टल के अलावा थोड़ी सी नकदी और उसका शनाख्ती कार्ड वगैरह रखा हुआ था, जिसके मुताबिक उसका नाम अमानत अली था। मोबाइल निकाल कर उसने इलियास का नंबर डायल किया। जी सर। आतिफ ने कहा, आ जाओ। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इलियास उसके पास था। जहां तक मेरा अंदाजा है कोठी में असल मुजरिम के अलावा और कोई मौजूद नहीं, और वो भी इसके बकौल सोया हुआ है। आतिफ का इशारा चौकीदार की तरफ था। इसलिए मैं उसकी सरकूबी के लिए जा रहा हूँ। तुम इसके हाथ पांव बांध कर जल्दी जल्दी इसके कमरे की और बाकी कोठी की तलाशी लो। ठीक है सर, कहकर इलियास जेब में रखी पतली सी डोरी निकालने लगा जो इसी
किसी मकसद से इन तमाम की जेब में हर वक्त मौजूद रहती थी। आतिफ मोहतात अंदाज में चलता हुआ अंदरूनी इमारत में दाखिल हुआ। पिस्टल एक बार फिर उसने तैयार हालत में थामा हुआ था। थोड़ी देर में ही वो तमाम कमरों को सरसरी नजर से देख चुका था। एक बेडरूम के अलावा तमाम कोठी खाली पड़ी थी। वो बेडरूम भी अंदर से लॉक था। जेब से पतली सी टेढ़ी तार निकालकर होल में दाखिल करते हुए उसने मखसूस अंदाज में तार को घुमाया। एक हल्की सी टक के साथ दरवाजा अनलॉक हो गया। आतिफ ने अंदर घुसने में देर नहीं लगाई कि उस खटके को सुनकर दुश्मन होशियार भी हो सकता था। उसका अंदाजा गलत साबित न हुआ। वो मकरूज सूरत सफेद फार्म जाग चुका था, लेकिन उसकी बदकिस्मती के उसके किसी एक्शन से पहले आतिफ अंदर दाखिल हो चुका था। मेरा ख्याल है तुम्हारा हैंड्स अप करना मेरी गोली और तुम्हारी जान बचा सकता है। तुम्हारी जान की तो फिर भी खैर है, गोलियां काफी महंगी हो गई हैं। ये अल्फाज आतिफ ने इंग्लिश में अदा किए थे। गोरे ने हैंड्स अप करने में देर न लगाई। आतिफ ने कहा, गुड, इसका मतलब है मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। इलियास अंदर दाखिल होता हुआ बरजस्ता बोला, कोई इतनी अच्छी भी नहीं सर। आतिफ ने कहा, यार जब एक गोरे को समझ आ गई है तो तुझे भी मान लेना चाहिए। वो बोला, मानूंगा तो उस वक्त जब मैट्रिक पास करेंगे। आतिफ बोला, नहीं भाई, ये मुश्किल शर्त है। बहरहाल जनाब, आप चारपाई से नीचे उतरें और एक कदम मेरी तरफ लेकर घूम जाएं। इंग्लिश ना आने का ये मतलब तो नहीं कि हम डाके मारना ही छोड़ दें। गोरे ने उसकी हिदायत पे बेचूचरा अमल किया। उसके घूमते ही आतिफ ने पिस्टल को नाल से पकड़कर उसका दस्ता पूरी कुव्वत से गोरे के सर में रसीद किया। वो आह की आवाज निकाले ढेर हो गया। आतिफ इलियास से मुखातिब हुआ, तलाशी ली है? वो बोला, सिर्फ 2 कमरों की ले सका हूँ। आतिफ ने कहा, चलो पहले इसे बांध दो। उसने जेब से डोरी निकाल कर उसकी समत बढ़ाई। इलियास के फारिग होने तक वो बेडरूम की तलाशी ले चुका था। थोड़ी देर बाद बकिया कमरों की अच्छी तरह तलाशी लेकर वो गोरे और उसके चौकीदार को उसी की गाड़ी में डाले गेस्ट हाउस की तरफ उड़ा जा रहा था। इलियास को उसने कोठी की निगरानी के लिए वहीं छोड़ दिया था। सर, उन्होंने मिस्टर एंड मिसेस तनवीर के नाम से कमरा बुक करवाया था। एड्रेस की जगह पे फकत रोड़ी रोड लिखा हुआ है, किसी गांव देहात का जिक्र नहीं। मेजर रोहित ने रणधीर की बात खत्म होते ही पूछा, और तस्वीर का क्या बना? रणधीर बोला, तस्वीर भी तैयार हो गई है सर, ये देखें। उसने जेब से एक तस्वीर निकाल कर रोहित की तरफ बढ़ाई। तस्वीर में रोहित को एक आम सी सूरत का नौजवान लड़का नजर आया। इसमें तो कोई ऐसी खास बात नजर नहीं आती कि पार्वती जैसी लड़की इस पे मर मिटी हो। रणधीर ने उसकी बात की तायद करते हुए कहा, बिल्कुल सर, वैसे क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? वो बोला, पूछो। रणधीर झिझकते हुए मुस्तफसिर हुआ, सर पार्वती में ऐसी कौन सी बात है कि आप जैसे सीनियर एजेंट को उसकी तलाश में आना पड़ा? रणधीर के सवाल पे रोहित के होंठों पे मुस्कुराहट बिखर गई। नहीं यार, मैं सिर्फ पार्वती की तलाश में नहीं आया। उसे ढूंढना तो इसलिए जरूरी है कि उसकी गद्दारी की वजूहात पता चल सके। ऐसी कौन सी मजबूरी लाहक थी कि वो आस्तीन का सांप बन गई? बाकी उसे अपने किए का फल भी तो मिलना चाहिए ताकि कल को कोई दूसरा ये जुर्रत न कर सके। रणधीर बोला, सर एक मशवरा है। रोहित ने कहा, किसी मशवरे और बात के लिए तुझे इजाजत लेने की जरूरत नहीं। वो बोला, थैंक यू सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि पार्वती की तलाश में हम जो तरीके बरूए कार ला रहे हैं, इस तरह उसका मिलना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल तरीन जरूर है। रोड़ी एक बहुत बड़ा शहर है और ये भी मुमकिन है कि वो रोड़ी शहर की बजाय किसी देहात का रिहायशी हो। रोहित को तमहीद गैर जरूरी लगी। वो उसे टोकता हुआ बोला, तमहीद की जरूरत नहीं रणधीर, तुम जो कहना चाहते हो साफ अल्फाज में कहो। वो बोला, सर मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम किसी सीआई वाले को पकड़कर उससे पार्वती के मुताल्लिक मालूमात हासिल करने की कोशिश करें तो शायद इन सारे बखेड़ों से बच जाएं। रोहित के मुंह से तहसीन आमेज अंदाज से निकला, गुड, वेरी गुड, इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग काम करता है। वो बोला, थैंक यू सर। रोहित बोला, इस वक्त तुम्हारे पास कितने आदमी हैं? उसने कहा, 10 हैं सर, मेरे साथ 11। मेजर रोहित बोला, बहुत हैं, सबको 2-2 की टोलियों में शहर में बखेर दो। जिसको भी खुफिया एजेंसी का कोई आदमी मिले बाकियों को भी बुला ले ताकि उसे काबू करने में आसानी हो। रणधीर ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, ठीक है सर, और रोहित ने सर के इशारे से उसे जाने का इशारा किया। वो बगैर किसी ताखीर के अपने हुक्म पर अमल करवाने का आदी था। इस्माइल का इरादा शहर पहुंचते ही ऊंटनी को छोड़ देने का था, मगर शहर के करीब पहुंचकर अचानक उसका इरादा उसे बेचने का हो गया। इतनी कीमती ऊंटनी को यूं ही छोड़ देना उसे मुनासिब न लगा। इस बहाने कुछ रकम भी उसके हाथ आ जाती। पहले राहगीर से ही उसे अच्छी रहनुमाई मिल गई। भाई, साथ वाले गोठ में अजमल साईं हैं, इतनी कीमती ऊंटनी वही खरीद सकते हैं। उसने पूछा, कितनी दूर जाना पड़ेगा? वो बोला, ये साथ ही तो है, आप इस गोठ से निकलें, जुनूब की समत 15-20 मिनट के रास्ते पे गोठ शादन है, वहाँ किसी से भी साईं अजमल के डेरे का पूछ लेना। इस्माइल बोला, 15-20 मिनट में तो मैं शहर जाऊंगा, क्या वहाँ ऐसा कोई बंदा नहीं जो इसे खरीद सके? वो बोला, शहर में तो कई मिल जाएंगे, लेकिन अजमल साईं जितने मुनासिब दाम शायद कोई न दे पाए। इस्माइल ने ऊंटनी का रुख जुनूब की समत मोड़ दिया। बहुत मेहरबानी भाई। आधे घंटे बाद वो अजमल के डेरे पे उसके सामने बैठा हुआ था।
दोपहर की तपती धूप में बरकी पंखे की हवा काफी खुशगवार तासुर दे रही थी। ठंडे पानी से इस्माइल की तवाज़ो करके वो डेरे के सहन में बैठी ऊंटनी के करीब आ गया। थोड़ी देर वो उसे सहन में घुमाता रहा, फिर उस पे सवार होकर डेरे से बाहर निकल गया। उसका अंदाज किसी मोटर मैकेनिक का सा था जो गाड़ी खरीदते वक्त उसके कल पुर्जे चेक करता है। जवान, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम इसे क्यों बेच रहे हो। इस्माइल बोला, औलाद से कोई चीज प्यारी नहीं हो सकती। जिसका इकलौता बेटा मौत और हयात की कशमकश में अस्पताल में पड़ा हो, उसके लिए इससे बढ़कर कुर्बानी देना भी मुमकिन है। अजमल बोला, सही कहा, बहरहाल कीमत बताओ। इस्माइल को कोई अंदाजा नहीं था कि उसकी कीमत कितनी हो सकती है। एहतियात का तकाजा यही था कि वो खुद से कीमत न बताता और उसने एहतियात का दामन हाथ से न छोड़ा। आप जो मुनासिब समझे। अजमल बोला, 1.20। इस्माइल 1.20 की इस्तिलाह न समझ सका, लेकिन उसके बावजूद उसने ऐसा तासुर दिया जैसे ये रकम उसके अंदाजे से बहुत कम हो। अजमल उसके तासुरात देखते हुए बोला, 1.30 कर लो। इस्माइल बोला, साईं मजबूर जरूर हूँ लेकिन इतना भी नहीं। अजमल ने कहा, जवान आखिरी रेट लगा रहा हूँ, कबूल हो तो ठीक है वरना आप किसी और के पास जा सकते हैं, मैं इसके 1.5 लाख दे सकता हूँ। ये कीमत इस्माइल के अंदाजे से कई गुना ज्यादा थी। वो अपने तासुरात पे काबू पाता हुआ बोला, साईं 1.60 पे तुम्हारी। थोड़ी देर बाद वो 1,55,000 के नोटों का बंडल अपनी कमीज में छुपाए उमरकोट का रुख कर रहा था। इस रकम से उसकी काफी मुश्किलात हल हो सकती थी। उमरकोट में रात गुजारना उसके लिए खतरनाक हो सकता था। उसने बगैर किसी ताखीर के बस अड्डे का रुख किया। मीरपुर खास जाने वाली बस की रवानगी में इतनी देर थी कि उसने खाना आराम से खा लिया। शाम तक वो मीरपुर खास पहुंच गया था। वहां से उसे हैदराबाद जाने वाली बस आसानी से मिल गई। रात गए एक छोटे से होटल के कमरे में लेटा वो खुद को काफी महफूज तसव्वुर कर रहा था। दिन चढ़े उठकर उसने कमरे में ही नाश्ता मंगवा लिया और फिर होटल वाले का हिसाब बेबाक करके बाहर निकल आया। उसका रुख बाजार की तरफ था। अब वो शहर में आ चुका था। देहाती लिबास में कराची जाना उसे मुनासिब न लगा। रेडीमेड कपड़ों की दुकान से उसने अपने लिए 2 जोड़े शलवार सूट और एक 3 पीस सूट खरीदा। इसी शॉप के ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदल कर उसने आईने में अपनी शक्ल देखी तो खुद को काफी बदला हुआ पाया। अगली दुकान से नए जूते और छोटा सफरी बैग लेकर वो कराची जाने के लिए तैयार था। सर शमीम के सिलसिले में हमसे पहले काफी गलती हुई है, ये कहने वाला इरफान था। आतिफ बोला, सही कहा, लेकिन हमें पहले अंदाजा ही ना हो सका। इरफान ने कहा, आप समझे नहीं सर, अगर हम मौजूदा तहकीक को नजरअंदाज कर दें तब भी वो मशकूक ठहराई जा सकती थी। आतिफ ने हैरानी से कहा, वो कैसे? वो बोला, सर जिस वक्त हमने इसे पहली दफा गिरफ्तार किया था उस वक्त ये उन दोनों कातिलों के साथ फ्लैट में मौजूद थी। हालांकि वो उसी वक्त वारदात से वापस आए थे। इसका साफ मतलब यही बनता है कि वो उनकी इस कार्रवाई से वाकिफ थी। आतिफ ने कहा, नहीं यार, फ्लैट में पहले से मौजूद होने का ये मतलब कैसे हो सकता है कि वो शरीक जुर्म थी? वो दोनों भी इस बात से लाइल्म थे कि ये उन पे निगरान है। इरफान ने कुछ कहने के लिए लब हिलाए ही थे कि दरवाजे को आहिस्ता से खटखटाते हुए जीशान और इमरान अंदर दाखिल हुए। सर बीबी साहिबा पहुंच गई हैं। आतिफ ने सामने पड़ी कुर्सियों की तरफ इशारा किया, गुड, बैठो। जफर के पास कोई गया था, कैसी है उसकी तबीयत? जीशान बोला, पहले से काफी बेहतर है। आतिफ बोला, अच्छा अब काम की बातचीत हो जाए। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि सब हाजिर हों, लेकिन ज्यादातर लोग ड्यूटियों पर हैं, इसलिए आपसे ही गुजारा चलाना पड़ेगा। जी सर कहते हुए तमाम उसकी तरफ मुतवज्जे हो गए। आतिफ ने बोलना शुरू किया, आज जो गोरा हमने गिरफ्तार किया है उसका ताल्लुक रॉ से नहीं किसी और एजेंसी से है। कराची में मुख्तलिफ ममालिक की बदनाम एजेंसियां सरगर्म अमल हैं, ये बात हमसे मख्फी नहीं। वक्तन फवक्तन इन तंजीमों के एजेंट गिरफ्तार होते रहते हैं। इनसे हमारी आंख मचोली बरसों से जारी है। तादाद और वसाइल की कमी के बावजूद हमने हमेशा डट कर इनका मुकाबला किया है और इंशाअल्लाह करते रहेंगे। लेकिन ये भी हकीकत है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात और खासकर कराची के हालात आज जिस नहज पे पहुंच चुके हैं वो काफी मायूस कुन है। हमें पहले से कई गुना ज्यादा चौकस होना पड़ेगा। सरहदों की हिफाजत पाक फौज ने बड़ी अच्छी तरह संभाली हुई है, जबकि आस्तीन के सांपों से निपटना हमारा काम है। गैरों से लड़ना मुश्किल नहीं, असल प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब कोई अपना सामने आता है। आज हमारा जवान अपने मुस्तकबिल से मायूस है। उसकी आला डिग्रियों की वक़्त रद्दी के पलंदे से बढ़कर नहीं। हमारे सरबराहों की कोशिश और सलाहियतें अपने इक़्तिदार को तूल देने में सर्फ हो रही हैं। उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि नई नस्ल का मुस्तकबिल क्या होगा, और वतन के दुश्मनों का असल हदफ वही जवान हैं जो हकदार होते हुए भी नौकरी हासिल नहीं कर सकते। आतिफ एक लम्हे के लिए रुका और फिर उसका सिलसिला कलाम जारी रहा। हम बहुत अजीब कौम हैं। हमारे आपस के झगड़े भी ऐसी बातों पर हो रहे हैं जिसे सोचकर अक्ल हैरान है। कौमें, कबीले और ज़बानें अल्लाह ताला की ज़ात बाबरकत ने सिर्फ शनाख्त के लिए बनाई हैं, और हम इन्हें फ़ख्र बरतरी का दर्जा देकर एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और इस ज़मन में कत्ल गारत से भी दरे
तबलीग न किया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि किसी अरबी को अजमी और किसी अजमी को अरबी पर कोई फौकियत नहीं। हमने कहा नहीं हम सैयद हैं, पठान हैं, बलोच हैं, जट हैं और पता नहीं क्या क्या हैं। दीन में फुरूई मसाइल हमारी आसानी के लिए थे, हमने उन्हें कुफ्र इस्लाम का मसला बना लिया। वो मसाइल जिनमें अफजल गैर अफजल का इख्तिलाफ था हमारी लड़ाई का मैदान बन गए। हमारे सियासतदान इस जोड़ तोड़ में मसरूफ हैं कि इक़्तिदार की सुनहरी चिड़िया किस तरह इनके काबू में आ सकती है। एहतसाब का नाम हर सियासी जमात का नारा है, मगर आज तक किसी को भी इसकी तौफीक नहीं हुई। इसकी वजह वाज़ेह है कि आज के हिज़्ब इक़्तिदार ने कल हिज़्ब इख्तिलाफ बनना है। आज वो एहतसाब लेता है तो कल उसे भी इस अमल से गुजरना पड़ेगा। आतिफ सांस लेने के लिए रुका। इस वक्फे को गनीमत समझते हुए इरफान बोला, सॉरी सर, कता कलामी की माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन इन हालात को बदलना तो हमारे बस में नहीं। आतिफ ने कहा, बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मेरी तमहीद का मकसद ये है कि इन हालात में हमारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। इमरान ने कहा, सर हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है। आतिफ ने कहा, होगा, लेकिन हमारी कारकर्दगी से इसका पता नहीं चलता। इंडिया का एक मेजर हमारे ही मुल्क में आकर हमें ललकारे, हमारे दो साथियों की पिटाई करे और एक को हलाक करके चलता बने तो इसका क्या नतीजा हासिल होगा। तमाम ने खामोशी से सर झुका लिए। देखो, सर झुकाने से काम नहीं चलेगा। मैंने ये सारी सूरत हाल इसलिए आप लोगों के सामने रखी है कि आप किसी गलत फहमी में मुब्तला न रहें। हमें अपनी सलाहियतों से बढ़कर काम करना पड़ेगा। वो बोले, सर हम आपकी तवक्कुआत पर पूरा उतरने की कोशिश करेंगे। आतिफ ने कहा, इसी में हम सब की भलाई है। बहरहाल चलो अपने मेहमानों का हाल अहवाल पूछते हैं। काफी देर से मुंतजिर हो गए और आतिफ की तकलीद में तमाम खड़े हो गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।